پاکستان میں کیونکہ پاپولیشن کا ایک بہت بڑا ایشو ہے تو ہم یہ نیچرلی ڈسکس کرنا چاہتے ہیں کچھ اسپیشلسٹ کو بلا کر کہ ہمیں یہ پتہ چلے کہ پاکستان میں گراؤنڈ ریالٹیز کیا ہیں، پاپولیشن کے اوپر ہم کس طرح سے سوچ رہے ہیں۔ اس لیے آج کیونکہ موسم بھی بہت اچھا ہے اور ہم نے سوچا کہ آپ کو کلاس روم سے یا اسٹوڈیو کے انوائرمنٹ سے تھوڑا باہر نکالا جائے اور مختلف اسپیشلسٹ سے پاکستان کی گراؤنڈ ریالٹیز کے بارے میں ڈسکس کیا جائے۔ ہمارے ساتھ آج یہاں موجود ہیں حسن وڑائچ صاحب۔ ان کا تعلق پاپولیشن ویلفیئر ڈپارٹمنٹ کے ساتھ ہے۔ گورنمنٹ پاپولیشن کو کس طرح سے دیکھتی ہے اس کے بارے میں حسن صاحب ہمیں ویلیویبل انفارمیشن پرووائڈ کر سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی ساتھ ہمارے ساتھ آج یہاں پر موجود ہیں مس عطیہ حنیف۔ عطیہ حنیف پچھلے کافی سالوں سے نان گورنمنٹ آرگنائزیشنز کے ساتھ کام کر رہی ہیں اور ان کا اسپیشلائزڈ ایریا ہے کمیونٹی موبلائزیشن اور سوشل موبلائزیشن۔ ان کے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر عامر محمود جو ایک میڈیکل ڈاکٹر ہیں اور پاکستان میڈیکل ایسوسی ایشن کے ساتھ وابستہ ہیں۔ حسن صاحب، گورنمنٹ کے لیول پہ ہم پاپولیشن کے ایشو کو کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ اس میں کیا پازیٹیو چیزیں ہو سکتی ہیں اگر کچھ ہیں، اور اس کے کیا نیگیٹو چیزیں ہو سکتی ہیں، اور گورنمنٹ لیول پہ آپ کیا انیشیٹوز لے رہے ہیں اور ان میں آپ کو کس قسم کی دشواریوں کا سامنا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماشاءاللہ پاکستان کی آبادی 17 کروڑ تک پہنچ چکی ہے، 17 کروڑ 20 لاکھ کے قریب۔ یہ ریسنٹ 2008 کا جو سروے انٹرنیشنل لیول پہ یونائٹڈ نیشن UNFPA کے تعاون سے اس کے مطابق، اس کا مطلب ہے ہم دن دگنی اور رات چگنی ترقی کر رہے ہیں اس میں۔ بالکل ماشاءاللہ سے، کیونکہ ہیومن جو ریسورسز ہیں وہ سب سے بڑی پوٹینشیل کی بات ہوتی ہے کسی ملک کی آبادی زیادہ ہونا، لیکن جو مسائل اس کے ساتھ ریلیٹڈ ہیں ان کو حل کرنے کے لیے پاکستان گورنمنٹ نے 2001-2 میں پالیسی پہلی دفعہ انٹروڈیوس کرائی، جس کے بینر کے انڈر اور جس نے پلیٹ فارم مہیا کیا NGOز کو اور گورنمنٹ کو انوالو اپنے آپ کو کرنے میں کہ آبادی کے بڑھنے سے جو مسائل پیدا ہو رہے ہیں ان کو کس طرح حل کیا جائے۔ اب آبادی کے بڑھنے سے جو مسائل پیدا ہوتے ہیں ان میں ایک تو غربت، اور اسی طرح غربت کے بڑھنے سے آبادی بھی بڑھتی ہے۔ اچھا، تو یہ ایک ویشیس سائیکل بننا شروع ہو جاتا ہے۔ ایگزیکٹلی، یہ ویشیس سائیکل میں بڑے اور بھی مسائل آ جاتے ہیں، جس میں ری پروڈکٹیو ہیلتھ، اور اس میں باقاعدہ ہم نے لیڈی ہیلتھ وزٹرز اور فیملی ویلفیئر ورکرز ایک نیا کیڈر ڈیولپ کیا جن کو 2-2.5 سالہ باقاعدہ ٹریننگ دی جاتی ہے کاؤنسلنگ میں سرٹن چیزیں آتی ہیں ماں اور بچے کی صحت سے حوالے سے، اور اس کے علاوہ STD، HIV ایڈز اور یہ جو بیماریاں تولیدی صحت سے ریلیٹڈ ہیں ان کی گائیڈ لائن دی جاتی ہے کہ آپ کس طرح بچ سکتے ہیں۔ گورنمنٹ کے ساتھ نان گورنمنٹ آرگنائزیشنز بھی کوئی آپ کا ساتھ دے رہی ہیں؟ بالکل، گورنمنٹ نے پالیسی دے کے نان گورنمنٹل آرگنائزیشنز کو ایک پلیٹ فارم مہیا کیا ہے کہ آپ لیگل لیمٹس میں رہتے ہوئے گورنمنٹ کے اداروں کے ساتھ کام کریں، کیونکہ پاپولیشن پاکستان کی 17 کروڑ تک گورنمنٹ کا انفراسٹرکچر پہنچانا تقریباً ناممکن ہے۔ اس لیے گورنمنٹ نے نان گورنمنٹل یعنی پرائیویٹ آرگنائزیشنز کو بھی اس بینر کے نیچے لا کے انہیں ٹریننگ میں ہیلپ کر رہے ہیں، انہیں فنڈنگ میں ہیلپ کر رہے ہیں، اور انٹرنیشنل ڈونر سے فنڈنگ لے کے دے رہے ہیں تاکہ آپ فار فلنگ ایریاز میں جائیں، مارکیٹنگ کریں، جس میں مطلب ہے کہ ہم سب لوگ مل کے اکٹھے کام کر رہے ہیں تو سکسیس ریٹ اس کی وجہ سے بڑھنے کے چانسز ہیں۔ یہ ایشو ایسا ہے کہ اس کو گورنمنٹ کا کوئی ایک ادارہ حل نہیں کر سکتا، خاص طور پہ پاپولیشن سے ریلیٹڈ جو ایشوز پیدا ہوئے ہیں، لیکن گورنمنٹ اسے بڑے پازیٹیولی لے رہی ہے، اور وہ پاپولیشن جتنی ہماری ہے اس کو ایک گفٹ سمجھ رہی ہے نیچر کی طرف سے۔ اس کا مطلب ہے کہ گورنمنٹ اور نان گورنمنٹ آرگنائزیشنز مل کے کام کر رہی ہیں، اور ساتھ اگر ہم میڈیا کو بھی لے لیں تو یہ پوری ایک سول سوسائٹی کی موومنٹ کے طور پر ہم سمجھ سکتے ہیں۔ کیونکہ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں مس عطیہ حنیف، جن کا تعلق ایک نان گورنمنٹ ادارے کے ساتھ ہے اور یہ NGOز کے ساتھ کافی عرصے سے وابستہ ہیں۔ ان سے پوچھتے ہیں کہ نان گورنمنٹ آرگنائزیشنز کے لیول کے اوپر جو کام ہو رہے ہیں، جو انیشیٹوز لے رہے ہیں، ان میں کیا ایشوز ہیں، وہ کس حد تک کامیاب ہیں، اور گورنمنٹ کے ساتھ آپ کی ہارمونی کیسی چل رہی ہے؟ تھینک یو ویری مچ ولی صاحب۔ اصل میں آپ جو بات کر رہے تھے اور حسن جو بات کر رہے ہیں کہ نیٹ ورکنگ کی اس وقت بہت ضرورت ہے۔ گورنمنٹ سیکٹر اور سول سوسائٹی کے تمام ادارے مل کے اگر ہم اس پرابلم کو لیں گے، جو کہ بڑھتی ہوئی آبادی کا مسئلہ ہے، تو پھر ہم اس پہ کچھ کنٹرول پا سکیں گے۔ اس وقت اویئرنیس کی بہت ضرورت ہے، کیونکہ ہم ہر طرح سے ریسورسز کو پول میں لا چکے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے پاکستان جب بنا تھا تو ہمارے پاس اس قدر ریسورسز نہیں تھی جتنی ہم آبادی لے کر آئے تھے، بلکہ ریسورسز ہمارے ساتھ ہی تھے۔ الحمدللہ ہم صرف خود ہی
एज अ सोर्स बनकर खुद से हमने रिसोर्सेज जनरेट किए हैं और अपने मसाइल हल करने की वो कोशिश की। हमारी प्लानिंग का मेरा ख्याल है एलिमेंट कुछ वीक है, जिसमें हमें अब सिविल सोसाइटी के तमाम इदारों को मोबिलाइज करके अपने साथ शामिल करने की ज़रूरत है, जैसे हेल्थ, पॉपुलेशन, एजुकेशन और इसी तरह एनवायरनमेंट के इश्यूज़ को अगर इकट्ठे लेकर एक हम अपना मसला समझकर चलेंगे तो आबादी पे हम कोई कंट्रोल कर सकेंगे। आपकी बात से मुझे याद आ रहा है कि एक यूनाइटेड नेशंस का प्रोग्राम था मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स के नाम से, इसके बारे में आप कुछ बता सकेंगी और हमारा क्या रोल है उसमें? जी, एक्चुअली 1994 में कायरो के अंदर एक कॉन्फ्रेंस हुई थी जिसमें यूएन ने एक डिक्लेरेशन साइन किया था, जिसके अंदर 189 कंट्रीज़ थे जिन्होंने दुनिया के जितने भी डेवलपिंग कंट्रीज़ थे उन्होंने इसको साइन किया कि हम एक 8 गोल अपने सेट कर लेते हैं कि बाय 2015 और 20 एंड देन 2050 तक ऑलमोस्ट हम वो टारगेट को अचीव 2050 तक के गोल्स हैं, जिसमें एक एस्टिमेटेड पॉपुलेशन का है पाकिस्तान की कि वो डबल हो जाएगी। इसलिए हमने पाकिस्तानियों ने भी उसको साइन किया, लेकिन अभी तक कुछ हद तक कह सकते हैं एजुकेशन के हवाले से कुछ अचीवमेंट हमें नज़र आ रही है, जैसे यूथ के लिए स्कूल का इनिशिएटिव आपको पता है कि वो एक अच्छी इंटरवेंशन है। कि पॉपुलेशन को किस तरह से चैनलाइज किया जाए उस एनर्जी को, तो एजुकेशन के साथ उसका एक लिंक इंडिकेटर्स बनता हैं है उनको मैयर करने के लिए, जिसके लिए अभी बहुत ज़रूरत है कि हम यूथ को मोबिलाइज करके उनको प्रेशर ग्रुप मॉनिटरिंग के लिए हम प्रेशराइज करें। अच्छा, मुझे यूथ की बात से मेरे जहन में आया कि पाकिस्तान उन चंद ममालिक में है जिनमें यूथ की पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा है, तो क्या आप हमें बताएंगी कि ये हमारे लिए एक एडवांटेज है या ये डिसएडवांटेज है? इसके क्या मेरिट्स और डिमेरिट्स हो सकते हैं? अगर तो आप देहाती कम्युनिटी में जाएं तो बढ़ती हुई आबादी में वो जो फैमिली साइज़ का बढ़ना और बच्चों का बढ़ना एक बहुत कुव्वत समझा जाता है, ताकत के तौर पे लिया जाता है कि ब्रेड अर्नर ज़्यादा हो जाएगी। UNDP डोनर एजेंसी है जिसने एक प्रोजेक्ट शुरू किया है जिसके अंदर यूथ को ऐसे एनवायरनमेंट के हवाले से ट्रेन किया जा रहा है जिसमें प्रोफेशनली उनको एंगेज करके उस तरह से प्रोजेक्ट शुरू किए जा रहे हैं ताकि साइकोलॉजिकल जो इम्पैक्ट आता है बिहेवियर, साइकोलॉजिकल और हेल्थ का इम्पैक्ट की जहाँ पर बात होती है, तो हमारे साथ आज यहाँ पर मौजूद हैं डॉक्टर आमिर महमूद जो एक मेडिकल डॉक्टर हैं। इनसे हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि बढ़ती हुई पॉपुलेशन की वजह से जिस्मानी और ज़हनी सेहत पर लोगों के क्या असरात रूनुमा होते हैं। थैंक यू वेरी मच वली फॉर इनवाइटिंग मी इन दिस प्रोग्राम। सेहत के हवाले से अगर हम देखें तो बढ़ती हुई पाबंदी जो पॉपुलेशन है उसके असरात को दो तरह से देखा जा सकता है। एक को हम क्वांटिटेटिव कहेंगे, दूसरे को क्वालिटेटिव कहेंगे। क्वांटिटेटिवली अगर हम देखें तो इस वक्त 170 मिलियन की जो हमारी आबादी है उसके लिए पाकिस्तान में जो रजिस्टर्ड डॉक्टर्स की तादाद है वो 1,30,000 है, विच इज़ हार्डली 0.75% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन। और एक डॉक्टर ऑफिशियली जितने पेशेंट्स देखता है उनकी तादाद है 1876। तो अब आप खुद देखें कि उसमें जो एक डॉक्टर जो एक फिज़िकली जितने पेशेंट्स को एग्जामिन कर सकता है तो 1800 की जो पॉपुलेशन है वो उसके कैपेसिटी से बहुत ज़्यादा है। आइडियली इसको 200 से 300 के दरमियान होना चाहिए, जो कि एक अच्छी क्वालिटी सर्विस जो एक तबी सहूलियात दी जा सकती हैं एक डॉक्टर दे सकता है वो इसके अराउंड होनी चाहिए। जिस हिसाब से हमारी पॉपुलेशन ग्रो कर रही है और जितनी कम तादाद में डॉक्टर्स प्रोड्यूस हो रहे हैं हमारे मुल्क में, उसको देखते हुए मैं ये फोर्सी करता हूँ कि अगर हमने कोई हंगामी बुनियादों पर डॉक्टर्स की तादाद को ना बढ़ाया और पॉपुलेशन के जो शरह नमूद है उसको हमने कम ना किया तो ये पॉपुलेशन पर डॉक्टर जो पेशेंट्स की तादाद है ये बहुत ज़्यादा एक्सीड हो जाएगी। जाहिर है क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ रही है और जैसे कि मिस अतिया ने बताया कि ये एक विशियस सर्कल है, विशियस साइकिल है, क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ेगी तो उससे बीमारियां भी बढ़ती हैं और आप बता रहे हैं कि उसके लिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा डॉक्टर्स की भी ज़रूरत है। तो डॉक्टर साहब कुछ बीमारियों के ऊपर आप थोड़ा सा हमारा फोकस देंगे कि किस किस्म की बीमारियां जो हैं ये पॉपुलेशन बढ़ने से ज़्यादा चांसेस होते हैं? देखिए, कुछ तो इन्फेक्शस डिजीज़ हैं जो कि जितने ज़्यादा लोग क्लस्टर होकर करीब एक दूसरे के करीब रहेंगे तो उसमें बीमारी फैलने का अंदेशा है वो ज़्यादा होगा। मिसाल के तौर पे हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, HIV। उसके अलावा जो खाने पीने की चीज़ों से बीमारियां होती हैं, टाइफाइड हो गया, हैज़ा हो गया, इस तरह की बीमारियां बहुत ज़्यादा होने की अंदेशा हो जाएगा। दूसरा जो इसका क्वालिटेटिव इम्पैक्ट है वो आप ये देखिए कि
इस वक्त ऑन एन एवरेज अगर एक डॉक्टर पाकिस्तान में शाम को 5 घंटे के लिए क्लिनिक के ऊपर जाता है, तो जो हमने एक रिसेंटली एक सर्वे भी किया है और उसमें जो टोटल पेशेंट्स वो चेक करता है दैट इज़ ओवर 100। जो हमें तालीम दी जाती है मेडिसिन की, उसके मुताबिक एक पेशेंट को अच्छे तरीके से चेकअप करने में, उसकी बीमारी की तशख़ीस करने में और उसका इलाज मुआलजा करने के लिए असूली तौर पर 10 से 15 मिनट चाहिए होते हैं। इसका मतलब है कि जब मैं डॉक्टर साहब के पास जाता हूँ और मुझे एक महसूस होता है कि डॉक्टर साहब चाहते हैं कि यार बस जल्दी जल्दी बैठो, मुझे बताओ क्या मसला है और मैं दवाई लिखूँ और जाओ, वो दरअसल अपने अगले पेशेंट का इंतज़ार कर रहे होते हैं ताकि वो सब पेशेंट्स को देख सकें एक थोड़े टाइम पीरियड के अंदर। जी, आपकी बात बिल्कुल ठीक है और उसमें सारा जो कसूर है वो डॉक्टर को भी नहीं हम कह सकते, क्योंकि वो भी आफ्टर ऑल ही इज़ अ ह्यूमन बीइंग। उसके पास वो लिमिटेड 4 से 5 घंटे हैं जिसमें उसने पेशेंट्स देखने हैं और उसके क्लिनिक में अगर 100 पेशेंट्स आ रहे हैं तो उसने सबको देखना है। ही कैन नॉट इग्नोर अ पेशेंट। इस वजह से उसको उस थोड़े से मिनिमम टाइम पीरियड में उस पेशेंट को देखना होता है, जिसकी वजह से कई चीज़ें ओवरलुक भी हो जाती हैं। जो आप बात कर रहे हैं कि वो पूरी तरह से तवज्जो नहीं दे पाता, उसकी एक बेसिक रीज़न यही है कि उसके पास पेशेंट पूल बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से वो पूरी तरह से तवज्जो नहीं दे पाता। पॉपुलेशन बढ़ने से एक तो डिजीज़ का इंसिडेंस ज़्यादा हो रहा है, दूसरा मेडिकल कम्युनिटी के ऊपर पेशेंट्स का बर्डन ज़्यादा हो रहा है, तीसरा ये है कि क्वालिटी जो मेडिकल चेकअप की फैसिलिटी है वो कम होती जा रही है। और उसकी मैं आपको एग्जांपल देना चाहूँगा कि इसका जो एक डायरेक्ट असर होता है, पाकिस्तान में इस वक्त जो टीका लगाने की जो शरह है वो एक शख्स 14 इंजेक्शंस सालाना कंज्यूम करता है पाकिस्तान में। एक्चुअली ये भी मेरा ख्याल है ज़्यादातर इंजेक्शन का जो फिनोमेना है वो क्वैक्स के थ्रू आगे स्प्रेड हुआ है, जिसकी वजह से लोगों के ख्याल में इससे ज़्यादा क्योर होता है और बीमारी ख़त्म हो जाती है इंजेक्शन के ज़रिए। हालांकि कम्युनिटी मेडिसिन में अगर डॉक्टर्स को पढ़ाया जाता है तो सबसे ज़्यादा यही होता है कि आप ओरल पिल्स के साथ इंजेक्शन कम से कम इंजेक्शन, क्योंकि सबसे ज़्यादा इस वक्त ट्रांसमिशन ऑफ डिजीज़ जो है वो इंजेक्शन के थ्रू हो रहा है। तो डॉक्टर साहब इसके लिए कोई मेजर्स लिए हैं फॉर प्रॉफिट सेक्टर ने कि कुछ अब इंजेक्शन तो लग रहे हैं, तो इसका क्या इलाज है? डॉक्टर्स को भी ज़्यादा अवेयर कर रहे हैं इसमें और पेशेंट्स को भी अवेयर कर रहे हैं कि बहुत ज़्यादा अगर ज़रूरत हो, फॉर एग्जांपल पेशेंट हॉस्पिटल में एडमिट है, उस सूरत में इंजेक्शन की ज़रूरत बनती है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपका। जी स्टूडेंट्स, आज आपने हमारे मेहमानों के साथ मुलाकात की और इन्होंने हमें बहुत दिलचस्प मालूमात फराहम की। आपने देखा होगा कि पॉपुलेशन जो है एक बहुत सिंपल इशू नहीं है। हमें ये पता चला कि पॉपुलेशन दरअसल एक विशियस साइकिल है। जब पॉपुलेशन बढ़ती है तो इससे गुर्बत और अफलास में इजाफा होता है, बल्कि इसके साथ ही साथ बीमारियों के अंदर भी इजाफा होता है। आपने नोट किया होगा कि हम गवर्नमेंट लेवल के ऊपर भी इसके ऊपर इनिशिएटिव्स ले रहे हैं, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस भी इसके साथ साथ काम कर रही हैं, मीडिया भी साथ है और प्राइवेट इदारे भी इसके अंदर काम कर रहे हैं। लेकिन हमारी कोशिशें उस वक्त तक कामयाब नहीं होंगी जब तक हम इकट्ठे मिलकर बैठ जाएं और एक ऑर्गेनाइज्ड एफर्ट करें। इस सिलसिले में आपने ये भी नोट किया होगा कि हम मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स की तरफ बढ़ रहे हैं, लेकिन ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है और इस मिलेनियम डेवलपमेंट को गोल्स को अचीव करना हमारे लिए बहुत आसान नहीं होगा जब तक कि हम एक कॉन्सनट्रेटेड, डेडिकेटेड और वेल कोऑर्डिनेटेड एफर्ट ना करें। हमारा वक्त ख़त्म हुआ चाहता है। उम्मीद है आपको हमारे मेहमानों के साथ मुलाकात दिलचस्प लगी होगी। मैं अपने सब मेहमानों का शुक्रिया अदा करता हूँ। हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।